بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ امریکہ میں مظاہرے جاری، 10,000 گرفتار۔ بروکلین میں پولیس آفیسر پر چاقو سے حملہ، 2 عہدیداروں پر گولی چلائی گئی۔ ٹرمپ پر تنقیدیں بڑھیں، سابق ڈیفنس سیکرٹری جیمز مارٹز نے کہا صدر امریکیوں کو بانٹ رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی بات کرنے والے امریکہ میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے، خامنائی کی تنقید۔ جرمنی نے کہا جارج فلائیڈ کی موت سے سکتے میں ہیں۔ ہندوستان میں کووڈ کا نیا ریکارڈ، 9,300 مریض، 260 موتیں۔ نظام الدین اجتماع میں شرکت کرنے والے غیر ملکی بلیک لسٹ، 10 سال تک ہندوستان میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ برازیل میں ایک بار پھر 28,000 انفیکشن، صدر بولسونارو نے کہا موت ہر ایک کا مقدر ہے۔ ایران میں ایک بار پھر 3,500 کووڈ معاملے، پارلیمنٹ ملازمین کو گھر بٹھا دیا گیا۔ پاکستان میں ریکارڈ 5,000 کورونا کیس، 3 ارکان اسمبلی کا انتقال۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ شروعات امریکہ کے مظاہروں سے۔ امریکہ میں جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے خلاف مظاہرے اور احتجاج جاری ہے۔ بعض جگہ تشدد کے واقعات پیش آئے۔ نیو یارک کے بروکلین میں ایک پولیس آفیسر کو چاقو گھونپ دیا گیا اور 2 آفیسرز کو گولی ماری گئی۔ ان پولیس عہدیداروں کو ہاسپٹل لے جایا گیا اور ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی ہے۔ بروکلین میں ایک پولیس آفیسر کی گردن پر چاقو سے حملہ کیا گیا اور 2 آفیسرز کے ہاتھ پر گولی لگی۔ نیو یارک پولیس نے یہ بات بتائی۔ یہ واقعہ آدھی رات کے وقت پیش آیا جب کرفیو جاری تھا۔ اس بارے میں اور تفصیلات نہیں ملی۔ لاس اینجلیس اور سان فرانسسکو میں کرفیو ہٹا دیا گیا۔ سیاٹل سے بھی کرفیو ختم کرنے کی خبر ملی ہے۔ سان فرانسسکو میں پولیس کی گولی سے ایک شخص ہلاک ہوا۔ اس نوجوان کی پہچان ایک 22 سالہ نوجوان کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اس طرح جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے بعد کیلیفورنیا میں مظاہروں کے دوران یہ پہلی موت ہے۔ پولیس نے بتایا کہ آفیسرز کو لوٹ مار کو روکنے کے بارے میں بلایا گیا تھا جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس کے مطابق نارتھ کیرولائنا کی پولیس احتجاجیوں کے خلاف کیمیکل ایجنٹس کا استعمال کر رہی ہے۔ اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد نارتھ کیرولائنا کی پولیس پر تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ یہ ویڈیو منگل کی رات بتایا گیا ہے لیکن اب تک سرکاری طور پر اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ جارج فلائیڈ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق وہ کووڈ-19 پازیٹیو تھے۔ جارج فلائیڈ کی موت دم گھٹنے سے ہوئی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق یہ قتل ہے۔ منیاپولس کے ان 4 پولیس آفیسرز کے خلاف سخت الزامات کے تحت کیس درج کیا گیا ہے جو 46 سالہ افریقن امریکن جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے وقت موجود تھے۔ فلائیڈ کی گردن پر گھٹنا رکھنے والے ڈیرک چون پر 2nd ڈگری مرڈر کا الزام لگایا گیا۔ منیسوٹا کے اٹارنی جنرل نے کہا کہ جارج فلائیڈ کے کیس میں اب بھی 1st ڈگری مرڈر کا الزام ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پروسیکیوشن ثبوت لاتا ہے تو آفیسر کے خلاف 1st ڈگری مرڈر کا الزام لگایا جا سکتا ہے۔ جارج فلائیڈ کے ارکان خاندان نے پولیس آفیسرز کے خلاف نئے الزامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ فلائیڈ کے گھر والوں اور ان کے وکیلوں نے اس مقام کا دورہ کیا جہاں 46 سالہ فلائیڈ کی موت ہوئی تھی۔ منیسوٹا کے اٹارنی جنرل کے دفتر نے اس معاملے میں شروعاتی تحقیقات مکمل کر لی ہے۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके साबिक डिफेंस सेक्रेटरी जेम्स मार्टिस ने शदीद तनकीद की है और कहा है कि ट्रंप इख्तलाफात पैदा कर रहे हैं। मौजूदा डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर ने भी गड़बड़ को रोकने के लिए फौज तैनात करने के ट्रंप के मंसूबे से इख्तलाफ किया है। जेम्स मार्टिस ने कहा कि ट्रंप जिस तरह से एहतजाज से निमट रहे हैं उससे वो खुश नहीं है बल्कि गुस्से में है। मार्टिस ने उन एहतजाजियों की तायद की जो अमरीका की कदरों को सरबुलंद रखने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने जेम्स मार्टिस को एक ऐसा फौजी जनरल बताया जिन्हें हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। सीरिया से फौजें वापस बुला वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वो एहतजाजों को रोकने के लिए फौज तैनात करने के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि एहतजाज अवाम का हक है और इसी हक और आज़ादी की वजह से हमारा मुल्क इतना खास है। मार्क एस्पर ने कहा कि उन्हें ट्रंप के मंसूबों के बारे में नहीं बताया गया। डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस के करीब एक चर्च जाने के लिए भी ईसाई लीडर्स तनकीदें कर रहे हैं। इस चर्च को एहतजाजियों ने पिछले दिनों मुजाहरे के दौरान नुकसान पहुंचाया था। अमेरिका के मुजाहरों और गड़बड़ के सिलसिले में गिरफ्तार लोगों की तादाद 10,000 से ज्यादा हो गई है। सबसे ज्यादा 2,500 गिरफ्तारियां लॉस एंजलिस में हुई। न्यूयॉर्क में 2,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ट्रंप ने कहा कि उन्हें एहतजाज को रोकने के लिए फौज तैनात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर रियासतें मुजाहरों और लूटमार को रोकने में नाकाम रहती हैं तो वो फौज उतारेंगे। ट्रंप ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं नहीं समझता कि अब हमें फौज इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने कहा है कि हालिया एहतजाज से जो गर्मी पैदा हुई है उसका इस्तेमाल तब्दीली लाने के लिए करना चाहिए। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अपने पहले वीडियो तबसरे में उन्होंने कहा कि इस तरह के मुजाहरे वो अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। उन्होंने अमरीकियों से कहा कि वो इस मौके का इस्तेमाल समाजी मसाइल हल करने के लिए करें। ओबामा ने मकामी मेयर से कहा कि वो पुलिस की तरफ से ताकत के हद से ज्यादा इस्तेमाल के मसले का जायजा लें और पुलिस के रवैये में सुधार लाएं। फिलाडेल्फिया के एक साबिक मेयर फ्रैंक रेजर्व का मुजस्समा हटा दिया गया है। हालिया एहतजाज के दौरान एहतजाजियों ने उनके मुजस्समे को मस्ख किया था। फ्रैंक रेजर्व एक मुतनाज़े लीडर थे। न्यूयॉर्क के मेयर ने कहा है कि शहर ने अमन की बहाली की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया है। पिछले कुछ दिनों में न्यूयॉर्क में जबरदस्त लूटमार हुई। कई स्टोर्स में तोड़फोड़ की गई और सामान को लूटा गया। न्यूयॉर्क सिटी में तकरीबन 280 लोगों को मंगल की लूटमार के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। उससे पहले की रात 700 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने अमेरिका की मशकूक इंसानी हुकूक पॉलिसियों की मजम्मत की है। उन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के लिए वाशिंगटन पर तनकीद की। आयतुल्लाह अली खामनाई ने कहा कि अमेरिका में एक खुले जुर्म में लोगों को हलाक किया जा रहा है। अमेरिकी ओहदेदार खुले दिल से माफी नहीं मांग रहे हैं जो इंसानी हुकूक की तायद का दम भरते हैं। खामनाई ने कहा कि शायद अमेरिकी ओहदेदारों की नजर में जिस अफ्रीकन अमेरिकन को हलाक किया गया वो इंसान नहीं था। जर्मनी की हुकूमत ने कहा है कि वो जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत पर सख्ते में है। हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि पूरी दुनिया और जर्मनी में लोग सख्ते में हैं, हुकूमत भी सख्ते में है। ये एक ऐसी मौत है जिसे टाला जा सकता था। जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के खिलाफ पूरी दुनिया में मुजाहरे किए गए। बरतानिया के वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने मुजाहरों की तायद करते हुए कहा कि कालों की जिंदगी मायने रखती है। उन्होंने पुरअमन एहतजाज के हक की तायद की और कहा कि एहतजाज के दौरान समाजी दूरी का ख्याल रखना चाहिए। एक रिपोर्ट में कहा गया कि हर साल अमेरिकी पुलिस के हाथों 1000 लोग हलाक होते हैं और इनमें 75% ब्लैक्स होते हैं। अमेरिका में हिंदुस्तानी सफारत खाने के बाहर गांधी जी के मुजस्समे की बेहुरमती की गई। बताया गया कि इस मुजस्समे पर नारे लिख दिए गए। इस सिलसिले में हिंदुस्तानी सफारत खाने ने एक केस दर्ज कराया है। ये वाकया 2 और 3 जून की दरमियानी रात पेश आया। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों, खास तौर पर कोविड-19 की सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। अमरीका में मुजाहरे जारी, 10,000 गिरफ्तार। ब्रुकलिन में पुलिस ऑफिसर पर चाकू से हमला, 2 ओहदेदारों पर गोली चलाई गई। ट्रंप पर तनकीदें बढ़ी, साबिक डिफेंस सेक्रेटरी जेम्स माटिस ने कहा सदर अमरीकियों को बांट रहे हैं। इंसानी हुकूक की बात करने वाले अमरीका में लोगों को मारा जा रहा है, खामनाई की तनकीद। जर्मनी ने कहा जॉर्ज फ्लॉयड की मौत से सकते में है। हिंदुस्तान में कोविड का नया रिकॉर्ड, 9,300 मरीज, 260 मौतें। निजामुद्दीन इज्तिमा में शिरकत करने वाले गैर मुल्की ब्लैक लिस्ट, 10 साल तक हिंदुस्तान में दाखिल नहीं हो सकेंगे। ब्राजील में एक बार फिर 28,000 इन्फेक्शन, सदर बोल्सोनारो ने कहा मौत हर एक का मुकद्दर है। ईरान में एक बार फिर 3,500 कोविड मामले, पार्लियामेंट मुलाजिमीन को घर बिठा दिया गया। पाकिस्तान में रिकॉर्ड 5,000 कोरोना केस, 3 अरकान असेंबली का इंतकाल। हिंदुस्तान में 9,304 नए कोविड केसों का एक और रिकॉर्ड कायम हुआ है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में ये केस रिकॉर्ड किए गए, जिनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाए गए। इसी मुद्दत के दौरान 260 लोगों की जानें गईं। ये भी एक रिकॉर्ड है। सिर्फ महाराष्ट्र में 122 मौतें हुई। हिंदुस्तान की तकरीबन 48% मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 24 और गुजरात में 30 मरीजों की मौत हुई। मुल्क में सरगर्म कोविड केस 1,06,000 से ज्यादा हैं। अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग बीमारी के बाद ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 2,560 नए केस पाए गए। रियासत में जुमला मरीजों की तादाद 75,000 हो गई है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसों की तादाद 2,18,000 से ज्यादा हो गई है और 6,100 मौतें हुई हैं। हिंदुस्तान कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा मुल्कों की लिस्ट में 7वें नंबर पर है और जिस रफ्तार से इंडिया में केसेस आगे बढ़ रहे हैं उसके मद्देनजर आइंदा 2-3 दिनों में वो इटली को पीछे छोड़ते हुए 6ठे नंबर पर पहुंच सकता है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने उन 2,500 गैर मुल्कियों के हिंदुस्तान में दाखिले पर 10 साल तक के लिए पाबंदी लगा दी है, जिन्होंने तबलीगी जमात के इज्तिमा में शिरकत की थी। वजारत दाखिला के ओहदेदारों ने ये बात बताई। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने तबलीगी जमात के इज्तिमा के सिलसिले में 12 चार्जशीट दाखिल की हैं, जिनमें 541 गैर मुल्कियों का नाम लिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2,550 गैर मुल्कियों ने उस इज्तिमा में शिरकत की थी, जिन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। इससे पहले इन गैर मुल्कियों के खिलाफ वीजा कायदों की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया गया था। इस इज्तिमा में कोई 9,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। ऐसा इल्जाम है कि तबलीगी जमात के जिम्मेदारों और ऑर्गेनाइजर्स ने एक ऐसे वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वबा फैल रही थी, निजामुद्दीन मरकज में इज्तिमा रखते हुए गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से कोरोना वायरस फैलने के वाकयात पेश आए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम के साथ एक ऑनलाइन समिट में कोविड-19 सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने हेल्थ केयर, ट्रेड और डिफेंस के बारे में भी बातचीत की। ये इस तरह की पहली ऑनलाइन समिट थी जो हिंदुस्तानी लीडर ने किसी बैरूनी लीडर के साथ की। हिंदुस्तान के डिफेंस सेक्रेटरी कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाए जाने के बाद डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में हलचल मची हुई है। डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार हालिया अरसे में कई अहम मीटिंग्स में शिरकत करते रहे हैं, जिनमें वजीर दिफा राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ भी मौजूद थे। अजय कुमार की हालत मुस्तहकम बताई गई है और फिलहाल वो होम क्वारंटीन है। साउथ ब्लॉक में फौजी हेडक्वार्टर में काम करने वाले कम से कम 35 ओहदेदारों को होम क्वारंटीन किया गया है।
पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के केसेस 66 लाख हो गए हैं, जबकि मौतें 3,90,000 को छू गई हैं। अमेरिका 19 लाख केसों और 1,09,000 मौतों के साथ बुरी तरह मुतासरा मुल्क है। ब्राजील दूसरे और रशिया तीसरे नंबर पर है। रशिया में 8,831 नए केस सामने आए और 169 नई मौतें हुई। रशिया के जुमला केस 4,41,000 हो गए हैं, जबकि मौतें 5,400 के करीब हैं। ब्राजील में कोरोना वायरस के केसों और मौतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। इसके बावजूद हुकूमत बाजार खोलने पर गौर कर रही है। चहारशंबे को मुल्क में 1,349 नई मौतें हुई और 28,333 नए केस सामने आए। ब्राजील में कोविड केस 5,85,000 हो गए हैं और मौतें 33,000 रिकॉर्ड की गई हैं। ब्राजील के सदर जैर बोल्सोनारो पर कोरोना वायरस के खतरे को नजरअंदाज करने का इल्जाम है और उन्होंने एक ताज़ा बयान में कहा कि मौत हर एक का मुकद्दर है। मलेशिया में 227 नए केस सामने आए, लेकिन कोई नई मौत नहीं हुई। फिलिपाइन में 10 नई कोविड मौतें हुई और 634 नए केस सामने आए। इंडोनेशिया में 585 नए इन्फेक्शंस और 23 मौतों की खबर है। हांगकांग में 5 नए केसों को कंफर्म किया गया है। चाइना में एक नया कोविड केस सामने आया। थाईलैंड में 17 नए केस सामने आए, लेकिन कोई नई मौत नहीं हुई। फिलिपाइन में कोरोना वायरस से एक दूध पीते बच्चे की मौत हुई। साउथ कोरिया में 49 नए केस रिकॉर्ड किए गए। स्पेन ने पुर्तगाल और फ्रांस के साथ 22 जून से जमीनी सरहदें खोलने का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट को न्यूजीलैंड जाने वाले मुसाफिरों के लिए खोल दिया गया। न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस की सूरत हाल इत्मीनान बख्श बताई गई है। मुसलसल 13वें दिन कोई नया इन्फेक्शन सामने नहीं आया। मेक्सिको में 1,092 नई मौतें हुई हैं, जो एक दिन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। मेक्सिको में 1 लाख से ज्यादा केसेस पाए गए हैं और 11,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। अमेरिका में 9 महीने का एक बच्चा उन लोगों में शामिल है जिनकी पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 की वजह से मौत हुई। इस बच्चे की केंटकी रियासत में मौत हुई। तुर्की और अबुधाबी के बीच इंटरनेशनल फ्लाइट्स को खोलने का फैसला किया गया है। तुर्की ने जून के महीने में 40 मुल्कों के साथ फ्लाइट सर्विस शुरू करने का मंसूबा बनाया है। ट्यूनीशिया में मस्जिदें और रेस्टोरेंट्स खोल दिए गए। जॉर्डन में कर्फ्यू का वक्त घटा दिया गया। अब रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू होगा और मुख्तलिफ गवर्नरेट्स के दरमियान खानगी गाड़ियों को आने जाने नहीं दिया जाएगा। ईरान में 3,574 नए इन्फेक्शन सामने आए हैं। फरवरी में वबा शुरू होने के बाद से ये एक दिन की सबसे बड़ी तादाद है। ईरान में कोविड-19 की सूरत हाल काबू में आ गई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुसलसल 3,000 के आसपास केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। मुल्क में अब तक कोविड-19 के 1,64,000 केस रिकॉर्ड किए गए और 8,000 मौतें हुई। ईरानी पार्लियामेंट के मुलाजमीन से कहा गया है कि वो घरों पर रहें और अरकान पार्लियामेंट की मीटिंग्स बर्खास्त कर दें। कुवैत में 562 नए केसों को कंफर्म किया गया है। ओमान में 778 नए केस सामने आए। यूएई में 459 नए केस सामने आए और 3 नई मौतें हुई। पाकिस्तान में 4,000 से ज्यादा नए कोविड केस सामने आए हैं। ओहदेदारों ने पिछले 24 घंटों में 4,801 नए केसों की तस्दीक की। ये पाकिस्तान में अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। इसके अलावा पाकिस्तान में 24 घंटों में कम से कम 85 मौतें हुई। कोविड-19 के 85,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और 1,770 मौतें हुई। पाकिस्तान के 3 अरकान असेंबली कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल कर गए हैं। तेलंगाना रियासत में कोविड-19 के केसेस काफी बढ़ रहे हैं। रियासत के टेस्टिंग रिकॉर्ड पर भी तनकीदें हो रही हैं। पता चला है कि 26 और 1 जून के दरमियान पूरे मुल्क में तेलंगाना का टेस्टिंग रिकॉर्ड सबसे खराब है। इसके बावजूद रियासत में रोजाना 100 से 200 कोविड केस सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा केसेस जीएचएमसी लिमिट्स में पाए जा रहे हैं। लीबिया की आलमी सतह पर तस्लीम की जाने वाली हुकूमत की फौज ने कहा है कि उसने पूरे त्रिपोली पर कब्जा बहाल कर लिया है। 1 साल से खलीफा हफ्तार की फौजों ने त्रिपोली को घेर रखा था और बाज़ इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया था। सरकारी फौज के तर्जुमान ने बताया कि हमारे सिपाहियों ने ग्रेटर त्रिपोली के पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया है। लीबिया की जिस हुकूमत को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है उसका असर सिर्फ त्रिपोली तक महदूद है, लेकिन लीबिया के अलग अलग मकामात पर अलग अलग ग्रुपों का कंट्रोल है। 2011 में मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी को नेटो के फौजी ऑपरेशन में हटाए जाने के बाद से मुल्क में कोई मरकजी हुकूमत नहीं है।
ایم کیو ایم لیڈر الطاف حسین نے امریکہ سے اپیل کی ہے کہ پاکستان کی فوجی اور سویلین مدد روک دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں مائنورٹیز کو ستا رہا ہے۔ امریکی حکومت کو ایک خط لکھتے ہوئے الطاف حسین نے کہا کہ پاکستان کے 3 صوبوں سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان علاقے پر فوجی قبضہ کیا گیا ہے۔ الطاف حسین کئی برسوں سے لندن میں جلا وطن ہے۔ بالی ووڈ کی کئی ہلکی پھلکی اور یادگار فلمیں بنانے والے باسو چیٹرجی نہیں رہے۔ ان کی مشہور فلموں میں رجنی گندھا، چت چور اور چھوٹی سی بات شامل ہے۔ ان کی عمر 93 سال تھی اور ضعیفی سے متعلق بیماریوں کی وجہ سے ان کی موت ہوئی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ امریکہ میں مظاہرے جاری، 10,000 گرفتار۔ بروکلین میں پولیس آفیسر پر چاقو سے حملہ، 2 عہدیداروں پر گولی چلائی گئی۔ ٹرمپ پر تنقیدیں بڑھیں۔ سابق ڈیفنس سیکرٹری جیمز مارٹز نے کہا صدر امریکیوں کو بانٹ رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی بات کرنے والے امریکہ میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے، خامنائی کی تنقید۔ جرمنی نے کہا جارج فلائیڈ کی موت سے سکتے میں ہے۔ ہندوستان میں کووڈ کا نیا ریکارڈ، 9,300 مریض، 260 موتیں۔ نظام الدین اجتماع میں شرکت کرنے والے غیر ملکی بلیک لسٹ، 10 سال تک ہندوستان میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ برازیل میں ایک بار پھر 28,000 انفیکشن، صدر بولسونارو نے کہا موت ہر ایک کا مقدر ہے۔ ایران میں ایک بار پھر 3,500 کووڈ معاملے، پارلیمنٹ ملازمین کو گھر بٹھا دیا گیا۔ پاکستان میں ریکارڈ 5,000 کورونا کیس، 3 ارکان اسمبلی کا انتقال۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔